Hello students, welcome to the channel SNW Physics Classes. If you really understand the concepts taught here, please turn the black thumb blue. That means like the video, share with your friends and subscribe to the channel SNW Physics Classes. Do not forget to hit the bell icon for the latest updates. Stay connected with me on Facebook, Instagram, or you can write using my Gmail ID. Links are given in the description box. This is the series of NCERT Solution Class 12th Physics, and in this video we are going to solve question answer of chapter 1, that is electric charges and fields, and this is the second part of the video. And in this video we are going to deal question number 1.6 to 1.10. so let's begin with the video. Question number 1.6, 4-point charges QA is equal to 2 microcoulomb, QB is equal to minus 5 microcoulomb, QC is equal to 2 microcoulomb and QD is equal to minus 5 microcoulomb are located at the corners of square ABCD of side 10 centimeter. What is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझेंगे. एक स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पे चार्जेस रखे हुए हैं ए बी सी पे. ठीक है, तो क्यू ए जो ए पॉइंट पे चार्ज रखा हुआ है दैट इज 2 माइक्रोकुलम, पॉइंट बी पे जो चार्ज है दैट इज माइनस 5 माइक्रोकुलम, पॉइंट सी पे जो है दैट इज प्लस 2 माइक्रोकुलम और पॉइंट डी पे माइनस 5 माइक्रोकुलम, और जो साइड ऑफ स्क्वायर है दैट इज 10 सेंटीमीटर. ठीक है, तो अब इसमें हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि एक चार्ज Q जो है वो सेंटर पे रखा हुआ है O पॉइंट पे और उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 1 माइक्रोकुलम. ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज. ठीक है, ये जो हमारा सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है, इस चार्ज का जो चार्ज पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो क्या है. लेट अस सी द आंसर. Side of square is AB is equal to BC equal to CD and it is also equal to DA which is 10 centimeter. चारों साइड स्क्वायर का बराबर होता है. ओके, डायगोनल्स AC is equal to BD 10√2 डायगोनल ऑफ स्क्वायर. ठीक है, अगर हम लोग AO का डिस्टेंस निकालें OC OB OD तो इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे दैट इज 5√2 सेंटीमीटर. At the center point O, we have placed a charge of 1 microcoulomb. Center पे हम लोगों ने एक चार्ज रखा और उसका जो मैग्नीट्यूड है that is 1 microcoulomb. So in the above case, the repulsive force between the corners A and center O is same in magnitude with respect to the repulsive force by the corner C. देखो यहाँ पे क्या है कि पॉइंट A और पॉइंट C पे जो फोर्सेस लग रहे हैं सेंटर पे, ठीक है, इन दोनों चार्जेस की वजह से, तो सेंटर पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड. ठीक है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है बट दीज फोर्सेस आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन इसका जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है. ये फोर्स जो है, ये चार्ज जो है इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और ये चार्ज जो है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा. तो प्लस माइनस जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों आपस में कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को. Okay, now next, hence these forces will cancel each other from A and C. No forces are applied on the center O. ठीक है, A और C जो चार्ज रखा हुआ है पॉइंट A और C पे, उसकी वजह से सेंटर पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है. Similarly, from the corner C, that the attractive force is applied on the O and another force with the same magnitude applied on the center O. ठीक है, यहाँ पे है जो कॉर्नर जो हमारा B और B, here is B, okay, B और D की वजह से जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो B और O के बीच में फोर्स का डायरेक्शन कुछ इस तरह से है और D और O के बीच में जो फोर्स का डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से है और इन दोनों का भी जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है. ठीक है, सेम हो जाएगा. Also these two forces are opposite in direction, hence it is also opposing each other और इसके वजह से ये दोनों भी cancel हो जाएंगे. Therefore the net force applying to the center is 0 because all the forces here are being cancelled by each other. ठीक है, तो हम लोग इस तरह से इसका आंसर लिख लेंगे. क्वेश्चन नंबर 1.7, यहाँ पे दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं. क्वेश्चन नंबर 1 is an electrostatic field line is a continuous curve, that is a field line cannot have sudden break. Why not?
ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन जो होता है वो एक कंटिन्यूअस कर्व होता है, वहां पे कोई ब्रेक नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों नहीं होता है, लेट अस सी हियर। मान लेते हैं एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, ठीक है, और यहाँ पे कोई चार्ज रखी हुई है। चार्ज का जो मोशन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, और ये जो मोशन होगा इट विल बी अ कंटिन्यूअस मोशन। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि चार्ज जो है वो यहाँ से उठ करके और दूसरी बार जो है यहाँ पे जंप करेगा, ये तो जंप नहीं कर रहा है। अगर ये जंप करता तो वहां पे सडन ब्रेक हो सकती थी, बट यहाँ पे जंप नहीं हो रहा है। चार्ज का जो मोशन है दैट इज कंटिन्यूअस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो मोशन होगी दैट विल बी ऑल्सो कंटिन्यूअस। लेट अस सी द आंसर, कैसे हम लोग इसको लिख पाएंगे। When a charge is placed in an electrostatic field, then it experiences a continuous force. Therefore, an electrostatic field line is a continuous curve. ठीक है, continuous force उस पे अप्लाई हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन है वो एक continuous curve को बनाता है. And a charge moves continuously, does not jump from one point to another, so the field line cannot have a sudden break. ठीक है, चार्ज जो है इस पॉइंट से डायरेक्टली इस पॉइंट पे जंप नहीं करेगी, जिसकी वजह से जो फील्ड लाइन होती है उसकी सडन ब्रेक नहीं हो सकती. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट. ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स में आती है. ठीक है, if two field lines will cross each other at any point, then at that point the field intensity will start showing two direction at the same point, which is impossible. अब इसको हम लोग समझेंगे. यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है. डायग्राम के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो किसी भी पॉइंट पे टेंजेंशियल होती है. ठीक है, सपोज हमको इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, उसके डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है, तो उसका एक टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर लेंगे जिसपे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन मिल जाएगी. बट अगर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, एक दूसरे को क्रॉस करेगा एक दूसरे के ऊपर, तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोगों को दो फील्ड लाइन की डायरेक्शन मिलेगी. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन होगा वो दो डायरेक्शन मिलेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉसिबल है, क्योंकि किसी भी चीज का मूवमेंट दो डायरेक्शन में एट अ टाइम नहीं हो सकता. देयरफॉर टू फील्ड लाइन कैन नेवर क्रॉस ईच अदर. इसी वजह से दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती है. क्वेश्चन नंबर 1.8, 2 point charges QA equal to 3 microcoulomb and QB is equal to minus 3 microcoulomb are located 20 centimeter apart in vacuum. ठीक है, दो पॉइंट चार्जेस है. हियर वी कैन सी द डायग्राम. पॉइंट चार्ज A, its magnitude is 3 microcoulomb. पॉइंट चार्ज B जो है उसका मैग्नीट्यूड है दैट इज ऑपोजिट -3 microcoulomb. ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट O ऑफ द लाइन AB ज्वाइनिंग द टू चार्जेस. सबसे पहले तो हम लोगों को मिड पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे फाइंड आउट करना है. Next question is, if negative test charge of magnitude 1.5 into 10 to the power minus 9 coulomb is placed at this point, what is the force experienced by the test charge? फिर उसके बाद पहले तो हम लोगों को इसको क्या फाइंड आउट करना है, we have to find out the electric field due to these two charges on this charge. ठीक है, और दूसरा हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि अगर इस चार्ज का मैग्नीट्यूड है 1.5 into 10 to the power minus 9 coulomb, तो उसकी वजह से वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. Let us see the solution here. Distance between two charges is 20 centimeter. Therefore, AO is equal to OB. ठीक है, ये दोनों जो है मिड पॉइंट पे है O, तो दोनों इक्वल होगा, इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को चलो हम लोगों ने सपोज किया कि इट इज E. सो फर्स्ट केस में हम लोग देखेंगे जो चार्ज A की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस हो रहा है, E1 is equal to 1/4 by epsilon naught Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, जो हम ये A और O के बीच का डिस्टेंस है दैट इज 10 सेंटीमीटर, और वी विल कन्वर्ट इट इनटू मीटर. ठीक है, तो 1/4 by epsilon naught इट इज इक्वल टू 9 into 10 to the power 9. ठीक है, इसकी वैल्यू हम लोग को पहले से भी पता है, इसका की वैल्यू है 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट की कांस्टेंट वैल्यू है दैट इज 9 into 10 to the power 9. Q that is 3 microcoulomb, 3 into 10 to the power 6 divided by
10 into 10 to the power minus 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। Therefore, electric field at point O caused by -3 माइक्रोकुलम चार्ज। अब दूसरे चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे बन रहा है उसको भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो वहां पे एक नेगेटिव टर्म आ रहा है, मींस नेगेटिव -3 माइक्रोकुलम है, तो हम लोग इसका मोड ले लेंगे। मोड में ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, फिर सेम मैग्नीट्यूड हो जाएगा। द टोटल चार्ज ऑन द पॉइंट O, सेंटर पे जो O पॉइंट पे जो चार्ज हो रहा है वो दोनों E1 और E2 को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करें या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो हम लोग उसको 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो द फर्स्ट आंसर वी विल गेट इज 5.4 into 10 to the power 6 न्यूटन पर कूलम अलोंग बी, ठीक है। पहला आंसर हमारा ये है 5.4 into 10 to the power 6 न्यूटन per coulomb. Therefore, the electric field at midpoint O is 5.4 into 10 to the power 6 न्यूटन per coulomb along B, ठीक है। सेकंड पार्ट हम लोग क्वेश्चन का देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि 1.5 into 10 to the power minus 9 कूलम का चार्ज जो है बीच सेंटर पे मिड पॉइंट पे रख दिया गया है O पॉइंट पे, ठीक है। सो F इज इक्वल टू Q इंटू E, फोर्स का एक्सपीरियंस कितना कर रहा है उसको हम लोगों को फाइंड आउट करना है। एक फॉर्मूला हमारे पास ये भी है, F इज इक्वल टू Q इंटू E। Q अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया, अभी हम लोगों को ये गिवन है कि 1.5 into 10 to the power minus 9 कूलम, और E हम लोगों ने फाइंड आउट किया 5.4 into 10 to the power 6 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। दोनों को सॉल्व करेंगे, देन वी विल गेट 8.1 into 10 to the power minus 3 न्यूटन, ठीक है। The force is directed along line OA because the negative test charge is attracted towards point A, ठीक है। अब इसका जो डायरेक्शन होगा along OA होगा, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज जो है वो अट्रैक्ट हो जाएगा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की तरफ, and is repelled by the charge placed at point B. As a result, the force experienced by test charge Q is 8.1 into 10 to the power minus 3 Newton along OA. Question number 1.9. A system had two charges. QA is equal to 2.5 into 10 to the power minus 7 coulomb and QB is equal to minus 2.5 into 10 to the power minus 7 coulomb. Located at point A, यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 0 minus 15 सेंटीमीटर, मतलब वो z एक्सिस में है, एंड B 0 0 plus 15 सेंटीमीटर, मीन्स ये दोनों जो चार्जेस हैं वो z एक्सिस पे पॉइंट रखे हुए हैं रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द टोटल चार्ज एंड द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ग्राफ से समझ पाएंगे कि ये x और y एक्सिस पे नहीं है, ये z एक्सिस पे चार्ज है, ठीक है। पॉइंट A हम लोगों ने यहाँ लिया हुआ है और पॉइंट B जो है हम लोगों ने यहाँ लिया हुआ है। लेट अस सी द सॉल्यूशन हियर। एट पॉइंट A, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इट इज गिवन 2.5 into 10 to the power minus 7 coulomb. At point B, total charge amount QB it is equal to minus 2.5 into 10 to the power minus 7 coulomb. Total charge of the system, दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग, QA plus QB which is equal to 2.5 into 10 to the power minus 7 coulomb minus, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो है इसका वो नेगेटिव साइन के साथ है, सो minus 2.5 into 10 to the power minus 7 coulomb which is equal to 0, ठीक है। टोटल चार्ज जो है सिस्टम का दैट इज 0। डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस एट पॉइंट A एंड B, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर which is equal to 0.3 मीटर। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय, ठीक है, डायपोल मोमेंट Q into D, ठीक है। P is equal to QA into D which is also equal to QB into D। तो 2.5 into 10 to the power minus 7 into 0.3 और हम लोगों को आंसर मिलेगा 7.5 into 10 to the power minus 8 coulomb meter along positive z axis. Therefore, the electric dipole moment of the system is 7.5 into 10 to the power minus 8 coulomb meter along positive z axis. Question number 1.10. An electric dipole with dipole moment 4 into 10 to the power minus 9 coulomb meter is aligned at 30 degree with the direction of a uniform electric field of magnitude 5 into 10 to the power 4 Newton per coulomb. Calculate the magnitude of the torque acting on the dipole, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक डायपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो दिया हुआ है दैट इज 4 into 10 to the power minus 9 coulomb meter,
ठीक है, और वो 30 डिग्री एंगल पे अलाइन कर रहा है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ओके, बिल्कुल सीधा हम लोग इसको फॉर्मूला पे पुट कर देंगे। पहले हम लोग जो गिवन है उसे लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इट इज इक्वल टू 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर, ठीक है। पी से हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल जो हम लोग का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का है दैट इज 30 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज गिवन 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। टॉर्क का हमारा फॉर्मूला है टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे हम लोग फॉर्मूला पे पुट करेंगे और यहाँ पे हम लोग इसका आंसर ले आते हैं इस फॉर्मूला को यूज करके। 4 × 10⁻⁹, 5 × 10⁴ एंड साइन 30 डिग्री, एंगल वाज 30 डिग्री, ठीक है। साइन 30 का वैल्यू 1/2 और इन दोनों को सॉल्व करके वी विल गेट दिस, ठीक है। तो 1/2 को अगर हम लोग 20 से मल्टीप्लाई करेंगे देन विल गेट 10⁻⁻4 Newton meter. Therefore, the magnitude of torque acting on the dipole is 10⁻⁻4 Newton meter. If you have any doubt, any confusion related to any question in this video, please comment in the comment section. Like, share and subscribe to my channel. Thank you very much for watching.